کرپٹ ہے کہ نہیں؟ کرپٹ ہے؟ چوری خرم اقبال صاحب ظالم تے نہیں؟ چوری خرم اقبال صاحب دے اوپر کوئی تے نہیں نپی؟ چوری خرم اقبال صاحب نے کہے دی نجائز قبضہ نہیں کیتا؟ چوری خرم اقبال صاحب نا انصافی تے نہیں کر دے؟ اور چوری خرم اقبال صاحب کیا پڑھے لکھے نے کیا ان پڑھ نے؟ دیکھو چار پانچ چیزاں اہم ہوندیاں نے، تعلیم، صحت، خدمت، انصاف۔ جنیاں نو اسی چوندے ہیں نا تے وہ پڑھے لکھے نے، جعلی ڈگریاں لئی پھردے ہوندے نے، اور انہاں تے آپ کرپشن دے کیس ہوندے نے، فریجے بھی رہندے نے، قتل آپ کراؤندے نے، اور جڑے آپ لا علم نے انہاں نے کٹا سکول بنوانے نے تے یونیورسٹیاں بنوانیاں نے، جنہاں دا آدھا علاج باہر ہوئے دوسرے ملکاں دے ہوئے، ساڈے ہسپتال انہاں نے کھے بنوانے نے۔ لہذا ایمانداری اور سچائی والی گل ہے، سانو ساڈے رنگا بندہ ہی زیب دیندا ہے جڑا ساڈے نال بوے، ساڈے مسئلے سمجھے، ساڈے نال اٹھے، ساڈے نال کھاوے، ساڈے درد نو آدھا درد سمجھے۔ ہن میں چوہدری صاحب تو پہلے مختصر ٹائم واسطے جاپان تو آئے جماعت اسلامی دے سینئر رکن عبدالرؤف ربانی صاحب نو مختصر ٹائم واسطے التماس کردا کہ مائک تے آ کے اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ عبدالرؤف ربانی۔ الحمد لله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام بھائی اور دوستوں اور قابل فخر اس علاقے کے رہنے والے ہمارے امیدوار جماعت اسلامی جناب چودھری خرم اقبال صاحب، میں یہاں پر یہ بات سن رہا تھا کہ آرائیں جاگ چکے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف آرائیں نہیں جاگ چکے، اس بستی میں، اس علاقے میں، اس حلقے میں، اس ملک میں رہنے والا ہر پاکستانی جاگ چکا ہے، ہر مسلمان جاگ چکا ہے، ہر زبان بولنے والا، ہر برادری سے تعلق رکھنے والا جاگ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، میں 10 سال پہلے یہاں پر جماعت اسلامی کے امیدوار کی کمپین کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ ابھی میں جاپان سے صرف چودھری خرم اقبال کی حمایت کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور آپ کے گاؤں کے سامنے موجود ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں صرف اور صرف برادری کی بنیاد پر نہیں آیا، میں کردار کی بنیاد پر انہیں ووٹ دینے آیا ہوں، میں اخلاق کی بنیاد پر انہیں ووٹ دینے آیا ہوں، میں دیانت کی بنیاد پر انہیں ووٹ دینے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے گاؤں میں آپ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونے کی، جماعت اسلامی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے کی جسارت کر رہا ہوں تو اس بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو محب وطن بھی ہے، محب دین بھی ہے، جو قربانیوں کی جس کی پوری داستان موجود ہے، جس کا یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہنا تو آپ سے بہت کچھ چاہتا تھا، دل میں باتیں بہت تھیں، آپ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا چاہتا تھا، پاکستان کی گزشتہ 76 سالوں کی کارکردگی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تابڑ سے میں شروع ہوا یہاں تک پہنچا تو یہ صرف ایک گاؤں کا راستہ ہی اس ملک کے ان نوجوانوں کی، ان بے روزگاریوں کا اور اس حال کی استحصالی کا، ان امیدواروں کی کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہی کافی تھا۔ لیکن میں اس مختصر وقت میں آپ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، حبیب جالب کا پیغام ہے، حبیب جالب کے اشعار ہیں، بس سمجھیے یہی میرا پیغام ہے آپ کے نام۔ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں، یہی تو وقت ہے میرے نوجوانوں، توبڑ کے
لوگوں یہی تو وقت ہے، آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تم لوگ تماشبینوں میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماشاءاللہ بڑی زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے عبدالرؤف صاحب جاپان سے، اور اس جذبے کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، دائیں ہاتھ سے سلوٹ پیش کرتا ہوں میں۔ نہ برادری کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں، صرف تعلق ہے تو چوری خرم صاحب کے کردار کا۔ زوردار کلیپنگ کر دو جناب آج۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک ہوگا، اور شہر کی خوشیاں منانے والے شہر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اب میں آپ کے میرے دلوں کی دھڑکن، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، میرے بڑے بھائی چوری خرم اقبال صاحب کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس سے قبل اپنی نشستوں سے اٹھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے اس بھائی کو آپ استقبال کیجئے، آپ ویلکم کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چوری خرم اقبال صاحب، چوری خرم اقبال صاحب، چوری خرم صاحب قدم بڑھاؤ، خرم صاحب قدم بڑھاؤ، خرم صاحب قدم بڑھاؤ، خرم صاحب قدم بڑھاؤ۔ خرم تیرے جانی سار، خرم تیرے جانی سار، خرم تیرے جانی سار، خرم تیرے جانی سار، چوری خرم اقبال صاحب۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ اے میرے شہر کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے شہر کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ چور، یہ جاگیردار کیوں چنے تم نے؟ یہ چور، یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنے تمام گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس محبت سے آپ نے مجھے نوازا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے اپنی محبتوں کو نچھاور کیا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بھائیوں کا، اور خاص طور پہ میرے گاؤں کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیوں شروع کیا، کیا ضرورت تھی کہ یہ پنگا لینے کی؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے جاگیرداروں کا کام ہے، یہ تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے اپنے گاؤں کو، اپنے حلقے کو، اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو سنبھالنا ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر فرض ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، جب حالات ٹھیک نہ ہو، جب مہنگائی ہو، جب بدامنی ہو، جب بے روزگاری ہو، اور ہمارے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہو اور کوئی نوکری دینے والا نہ ہو، اور اگر کوئی نوکری دے تو وہ 6 لاکھ لے کے، کوئی 12 لاکھ لے کے، کوئی 15 لاکھ لے کے، اور پھر ہم اگر ان کے لیے سیج سجا کے بیٹھے ہوں الیکشن کے وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے اس میدان میں اترا ہوں کہ یہ نوجوانوں
के करने के काम है, नौजवानों के करने का ये काम है। और मैं समझता हूं कि हर नौजवान के करने का काम है, हर नौजवान को मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन का भी हुक्म है, हमारे नबी की भी ये सीरत है। और तमाम अंबिया ने यही काम किया कि अपने वक्त के फिरौन के सामने वो खड़े हो गए और डट गए और मुकाबला किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी खुर्रम इकबाल साहब, कारी खुर्रम इकबाल साहब, कारी खुर्रम इकबाल साहब, कारी साहब कदम बढ़ाए। मेरे बुजुर्गों और मेरे गांव के लोगों, मैं ये बात कह रहा था कि मैं किस लिए इस मैदान में उतरा, और मैं साथ साथ आपको ये बता रहा था कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हर नौजवान को इस मैदान में उतरना चाहिए। आप देखें हमारे हलके के अंदर 2 या 3 खानदान है, 2 या 3 सियासी खानदान है, वही हर दफा नई पार्टी बदलकर, नया रूप बदलकर वो हमारे गांव देहातों में आ जाते हैं, और इसी तरह हमारे गांव में भी आते हैं और हम थड़ों में बढ़ जाते हैं, हमारे बुजुर्ग थड़ों में बढ़ जाते हैं। कुछ एक थड़े के लिए नारे लगाने शुरू कर देता है और कुछ दूसरा थड़े के लिए नारे लगाने शुरू कर देता है। और उन लोगों का किरदार आप देखें जिनके लिए हम नारे लगाते हैं, उनका किरदार ये है कि हम तो उनके साथ मुखलिस हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो उनके साथ जिंदगियां गुजार दी। किसी धड़े ने 30 साल, किसी धड़े ने 35 साल, किसी धड़े ने 40 साल, लेकिन उनका किरदार देखिए कि वो किसी भी पार्टी में एक दिन भी नहीं रुकते, कोई एक महीना भी नहीं रुका, वापस आ जाते हैं। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों चौथी पार्टी में। यही उनकी औकात है, यही उनकी सियासत है। मेरे भाइयों, कब तक हम इनके लिए नारे लगाते रहेंगे, कब तक हम इन थड़ों में बटे रहेंगे? खुद निकले मैदान में। मैं तो कहता हूं कि हर गांव से एक नौजवान उठे और इनके खिलाफ कागजात जमा करे और ये साबित करे कि ये नौजवान पाकिस्तान के नौजवान आम नौजवान नहीं है, ये सलाहियत रखते हैं। अगर ये डिग्री हासिल कर सकते हैं तो ये एमपी भी बन सकते हैं, अगर ये नौकरियां कर सकते हैं तो ये सियासत भी कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हमारे गांव के अंदर एक पीएम से लेके कर्नल तक मौजूद है, सेशन जज भी मौजूद है, और हर शोबे जिंदगी में, हर महकमे में हमारे लोग मौजूद हैं। तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? बताएं मुझे, नहीं कर सकते? ये काम भी हम कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये हुनर दिया है कि हम इनकी आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकते हैं और अपनी बात को मनवा भी सकते हैं, और किसी दफ्तर में हम अपनी बात को पहुंचा भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी साहब जिंदाबाद, कारी खुर्रम इकबाल साहब, कारी खुर्रम इकबाल साहब, कारी खुर्रम इकबाल साहब। मेरे भाइयों, हमें अपने वोट का मयार तय करना होगा, वोट का एक मयार बनाना होगा, सपोर्ट का एक मयार बनाना होगा। वोट का ये मयार है, वोट का ये मयार नहीं है कि जो जीत रहा है उसको वोट दे दिया जाए, जिसके साथ फौज है उसको वोट दे दिया जाए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं उसको वोट दे दिया जाए। ये वोट का मयार नहीं है। हमें वोट के मयार को समझना होगा, वोट का मयार तय करना होगा। वोट का मयार ये है कि अहल लोगों को वोट दे, दयानतदार लोगों को वोट दे। और मैं जिस जमात का नुमाइंदा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जमात सिराजुल हक की जमात है। जमात इस्लामी सिराजुल हक। ये रोक दे जरा, एक दफा रोक दे। भैया आतिशबाजी बंद कर दे यार, बड़ी मेहरबानी। 10 मिनट ने नमाज के अंदर बड़ी अहम गलबात करनी यार, मेहरबानी बंद कर दो एक बारी।
मेरे भाइयों, सिराजुल की तमाम जमातों को मिला ले, तमाम जमातों को सामने रखे और तमाम जमातों के कायदीन को भी सामने रखे। आपको पता चलेगा कि सिराजुल हक साहब वो शख्सियत है जो 2 दफा वजीर खजाना रहे हैं, 2 दफा वजीर खजाना। आप वजीर खजाना के जरा घर का तो तस्वुर करें कि वो किस तरह होगा। वो तो एक बंगला होना चाहिए, वो उसके आगे पीछे तो गाड़ियों की कतारें होनी चाहिए और उसका एक शहाना तर्ज जिंदगी होना चाहिए। लेकिन सिराजुल हक साहब का अगर आप तहकीक करें, मोबाइल पे देखें, आप उनका घर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 2 दफा वजीर खजाना होने के बावजूद बिल्कुल सादा तर्ज जिंदगी रखते हैं, बिल्कुल सादा अंदाजे जिंदगी है। ना कोई गाड़ी, ना कोई गाड़ियों के काफले, ना हटो बच्चों का शोर, ना कोई गार्ड, आम बसों में सफर करने वाले और सादा तर्ज जिंदगी दरवेश सिर्फ आदमी। इसी तरह का हम निजाम चाहते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हो वो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में और प्रोटोकॉल में ना आए। ये प्रोटोकॉल, ये करप्शन हमें ले डूबी। हमारे मुल्क के आज जो मसाइल हैं इसका एक ही हल है कि प्रोटोकॉल लेने वालों को, करप्शन करने वालों को इनकी हौसला शिकनी की जाए और उन लोगों की हौसला अफजाई की जाए कि जो सादा तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आपके अंदर लोग कहते हैं कि इन्होंने जीतना नहीं है। ये कौन सा मेयार है? ये क्या मेयार है जो हमने बना लिए कि जीतना नहीं है तो वोट नहीं दे सकते, जीतना नहीं है तो सपोर्ट नहीं कर सकते? क्यों भाई? उसको वोट देना है जो जीत रहा है नजर आ रहा है। हम इंशाल्लाह जीत के भी इनको दिखाएंगे एक दिन इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने जीतना नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि हम जीत चुके हैं। जीतता वो है जो मैदान के अंदर होता है, मर्द वो होता है जो मैदान के अंदर है। और हम इंशाल्लाह मैदान के अंदर उतरे हैं और उतरते रहेंगे जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी। इंशाल्लाह इन जालिमों के खिलाफ खड़े रहेंगे। ये वो जालिम है मेरे भाइयों, ये वो नाअहल लोग हैं जो कि हमारी बात ही नहीं करते असेंबली के अंदर। इनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है, मैं क्या क्या बातें आपको बताऊं, इनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है। आप रिपोर्ट्स निकाल के देख ले, इनके अंदर इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं है कि ये असेंबली के अंदर उठ के खड़े होकर बात कर सके। ये नाअहल सिर्फ हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं, ये सिर्फ डेरों में बैठ के अपने चमचों को कुछ बातें कर सकते हैं। ये जो हर गांव में चौधरी बैठे हुए उनके सामने ये आके कोई तकरीरें कर सकते हैं। इनकी इतनी अहलियत नहीं है कि ये कोई बात कर सके। मेरे भाइयों, इनसे हमें जान छुड़ाना होगी, ना सिर्फ इस हल्के में, पूरे पाकिस्तान में ये जो 200-300 खानदान है, हम इनसे जान छुड़वाएंगे तो फिर हमारे मसाइल हल होंगे, फिर महंगाई कम होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी हमारे जैसे लोगों को टिकटें देती है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जमात इस्लामी के अलावा कोई और जमात, वो कोई भी जमात हो, कि वो मेरे जैसे आम नौजवान को टिकट देगी? ये मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, टिकटें खरीदी जाती हैं, कोई 10 करोड़ में खरीदता है, कोई 20 करोड़ में खरीदता है, कोई 30 करोड़ में खरीदता है। और जब वो टिकटें खरीदते हैं तो पहले अपने पैसे वसूल करते हैं, अपने पैसे पहले पूरे करते हैं, वो करप्शन के जरिए, वो नौकरियों के जरिए, वो थाना कचहरी के जरिए। और हम हैं कि हम जब इलेक्शन आता है तो उनके लिए डेरे सजा के बैठे होते हैं। हमने इस कल्चर को खत्म करना है इंशाल्लाह। डेरों के कल्चर को खत्म करना है। कौम के नुमाइंदे कौम के खादिम होते हैं, वो आम घरों में रहते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है, नबी मेहरबान रजी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है, तमाम अंबिया की मिसाल हमारे सामने है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हमारा दस्तो बाजू बनेंगे। जो मिशन मैं लेके निकला हूँ, मेरा साथ दें, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम ये रेत की दीवारें हैं, ये हमारा
कुछ भी नहीं कर सकती। ये अंदर से खोखले लोग हैं, ये अंदर से खोखले लोग हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम इंशाल्लाह हर सतह पर इनका, हर मुहाज पर इंशाल्लाह मुकाबला इनका करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि ये जीतना नहीं है, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं अगर मैं हार जाऊंगा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। वो इसलिए मेरा सीना चौड़ा है कि मैं किसी इलेक्टेबल के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए या इन चोरों और लुटेरों के लिए मैं मेहनत नहीं कर रहा। मैं मेहनत कर रहा हूं शऊर के लिए, अपने नौजवानों को शऊर देने के लिए। मैं हार जाऊंगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने अपना काम करना है, अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, वो मैं जलाता रहूंगा, अपने हिस्से की आवाज में उठाता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं करता रहूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह खुर्रम साहब का हम साथ देंगे, खुर्रम साहब का साथ देंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे, हम खुर्रम साहब को सपोर्ट करेंगे। अरे हजरात एक बात सुनिए, एक आखिरी बात सुनिए। हाजी शेर साहब दो चार मिनट के लिए गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अहम बात यह है, प्लेटफॉर्म बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए, बड़ी मुद्दबाना इज्तिमा से बैठ जाइए। कुरान का फरमान है, एक आयत सुनाने लगा हूँ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और जर्रा जर्रा, टुकड़ा टुकड़ा, फिरका फिरका, थड़ा थड़ा, ग्रोह ग्रोह ना हो। खुर्रम साहब की क़यादत में हम मुत्तहिद होकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। खुर्रम साहब की क़यादत में हम इत्तेहाद करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हमारे गांव की दिल एक है और एक साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल औलाद पर। मेरे गांव के नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नमाज का टाइम हो गया, चंद मिनट रह गए, लोग सुनता भी पढ़ना शुरू हो गए होने, तो मैं एक तुहाडे को एक या दो गल्लां करदा टाइम दे मुक्सर होने की वजह नाल। दोस्तों, इस गल का सारे पिंड वालियां नूं पता लग गया है कि असी अपना कैंडीडेट अपने पिंड का क्यों खड़ा किया है। असी अपने जिहड़ा दौरे इकतदार दे विच है सी, एक मेन सड़क दा जिहड़ा कि साडी 11-22 भी नहीं आउंदी सी, उत्थे इन्ने जिंप बन गए ने। दूसरा खाले दा सी जिहड़ा कि साडा घरां चों पानी निकलना भी किसी दिन बंद हो जाना है। ये दो काम सी, दो काम असी जांदे सां ते सानू उन्हें बड़ा रजाया हुकूमती नुमाइंदे ने। सानू जदों जांदे सां करोड़ रुपए दा ऐलान कर दिंदा सी, फिर असी 2-4 वारी गए, उन्हें सानू इन्ने क करोड़ देते ते सानू बद हजमी हो गई। असी बड़िया सख्त गल्लां भी आखियां सी कि अगर तू साडा काम ना कीता, सानू काम हुंदा नजर ना आया ते असी तेनू वोट को नहीं देने ही, और असी अपना बंदा खड़ा कर लेना ही। असी ये पिंड वाले की इज्जत की खातर ये पिंड अपना पिंड का बंदा खड़ा किया है। दूसरी गल ये कि अपना असी एक इज्तिमा करना सी पिंड वालियां दा, पिंड वालियां ने सारियां दी राय लेनी सी। 29 तरीक दे साडे 29 पिछली 29 तरीक दे 29 जनवरी दे 2023 दे असी फ्लैक्सां लातियां सी, एक बड़ा जलसा पिंड का करना है, उनके च राय ली जाए। चौधरी खुर्रम साहब लाजमी नहीं सी कि इन्हों खड़ा करना है, ये कोई भी बंदा असी पिंड का खड़ा करना चाहना सा कि असी पिंड नूं एक बन्ने ले चलीए। इन्हां सियासी गुरुओं नूं पता होवे कि असी सारे ताबर वाले जिन्होंने ये मजाक करते सी ग्रांटां दे विच, जदों टेंडर हुंदा सी ग्रांट कोई नहीं सी हुंदी ताबर दी, असी बड़े गौर नाल अखबार लैके पढ़ते सां ते ये असी ताबर वालियां नूं इन्हां नूं पता लगे कि ताबर वाले एक बंदे ते एतमाद करते हैं और ताबर वाले इकट्ठे भी हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी गल ये
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਦਿਆਨਤ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, बात करते हुए अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने जो अज़म और जो इरादा किया इसमें हमारा तू हामी व मददगार बन जा। ऐ अल्लाह, अगर हमारा इरादा, हमारे कैंडिडेट का इरादा, हमारे ज़हन अगर अल्लाह ईमान और इत्तेहाद के साथ मुखलिस है, मजबूत है, तो हमें अपनी गायबी ताकत अता फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। मंसूरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान, मंसूरिल इस्लाम वल मुजाहिदीन फी कुल्ली मकान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व क़ल्बन ख़ाशियन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व क़ल्बन ख़ाशियन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन वजअलना मिनहुम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व उम्महातिल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद ये रैली 33 SP में जाएगी। चौधरी खुर्रम इकबाल साहब की क़यादत में जो लोग गाड़ियों में हैं, गाड़ियों के साथ आए हैं, वो उसी तरह काफ़िले की सूरत इख्तियार कर लें।